مسیح یسوع کے عظیم جلالی بابرکت فتح مند نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں سب بہن بھائیوں کو اور میری طرف سے، میری فیملی کی طرف سے آپ سب کو سلام پہنچے۔ ہم اپنی عبادت کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم ابتدائی دعا کریں، میں شکر گزار ہوں آپ سب کی، اور اس سے بڑھ کر اپنے خداوند یسوع مسیح کی، جس نے ہمیں یہ موقع دیا اور ہمیں دور و نزدیک سے اس پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا۔ آپ سب کو اس مسیحی محفل میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آئے ہم اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں اور سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے پوری عبادت کے ماحول کو خداوند کے پاک اور پوتر ہاتھوں میں دیں۔ جتنی جانیں اب تک ہمارے ساتھ جڑ چکی ہیں، ان کے لیے شکر گزاری کریں، اور جو آنے کو ہیں ان کے لیے دعا کریں کہ وہ بھی جلد سے جلد ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ اور میرے لیے بھی دعا کریں کہ میں جو کچھ بھی بولوں وہ خدا کی ہدایت کے مطابق بولوں۔ جو بہن بھائی یا بچے خداوند کی حمد و ثنا کرنے کو ہیں، خداوند ان کے گلوں کو اور سازوں آوازوں کو چھوئے اور برکت دے، مسیح یسوع کے عظیم نام میں۔ آج ساری پرستش کے وسیلہ سے خداوند جی ہم سب کے بندھن اور جوئے کھل جائیں۔ خداوند جی آپ کی پاک حضوری کا بادل زور سے برسے۔ اے خداوند جی آپ اپنا آسمان کھول کر اپنے لوگوں میں آ جائیے، تاکہ پوری آزادی کے ساتھ آپ کے لوگ آپ کی مہما کے گیت گا سکیں، اپنے لبوں کے نذرانے آپ کے حضور پیش کر سکیں، اپنی شکر گزاریاں آپ کے سندر قدموں میں رکھ سکیں، اور اپنی ضرورتوں کو اے خداوند جی، اپنے خیالوں کو، اپنی بیماریوں کو ہاللویا۔ یس خداوند جی آپ کا پیار کیا ہی نرالا، اور آپ کی شفقت ابدی ہے جو ہمیں ہر موڑ پر سنبھال لیتی ہے کہ ہم گھبرائیں نہیں، بلکہ اپنے مسیح یسوع میں دلیر ہو کر ابلیس کا مقابلہ کر سکیں۔ خداوند جی آپ ہمارے جیتے ہوئے کپتان ہیں، آپ ہمارے محکم قلعہ ہیں، آپ کا قبضہ پورے ماحول پر دیتی ہوں، شروع سے آخر تک آپ اپنا قبضہ دیجیے، ہم اپنے مسیح میں بڑھتے چلے جائیں اور دشمن کو شکست دے سکیں۔ آئے ہم ابتدائی دعا سارا کے ساتھ مل کر کریں گے۔ جی ٹھیک ہے۔ باپ بیٹے اور اس کے نام سے آمین۔ باقی شروع کرتے ہیں کہ آپ نے ہم موقع دیے، ہم آپ کے حضور میں حاضر ہیں باپ، اس وقت کے لیے ہم دلی جان شدا کرتے ہیں آپ، ہم سب کا ہاتھ ہے باپ، ہم جتنی پرستش کریں پکلام پڑھیں آپ، آپ کے قبول آپ کو پسند ہے آپ، جو ہم پرستش کریں آپ تو پاک ہم سب کو اس پر خوش لیجیے گا آپ، جو پرستش کریں ہم سب کو خوش ہوئے گا، ہم اچھے طریقے سے پرستش کر سکیں باپ، ہماری پرستش کو اب تک لگ جائے گا، ہم سب کا ہاتھ ہے آپ، جتنی دعائیں گے تم ڈیزائن کریں آپ، اور آپ کے بخور میں پہنچنے کروا ہمیں جلد سے ملے آپ، ہم جو بھی باقلام پڑھیں ہمارے بات برکت ہم اس سے عمل کر سکیں باپ، ہم سب کا ہاتھ، ہم سب کا بخشیش، ہم پورے میرے خان آپ کا ہاتھ میں دیتے ہیں، جتنے بھی گیت ہیں پرستش کریں آپ، جو بھی باتیں کریں آپ کو بولنا آپ کو پسند آئے آپ، ہم سب کا ہاتھ کسی طرح کے انٹرپشن سے دور رکھیے گا آپ، ہم سب کا ہاتھ ہمیں صدا سنا کے نام میں آمین۔ آئے ہم پرستش میں آگے بڑھتے ہیں سیڈرک فیملی کے ساتھ۔ ہیلو میری آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے۔ جی ٹھیک ہے گانا گیا۔
आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बेहद खूबसूरत प्रस्तिश खुदावंद इस प्रस्तिश के वसीला से हमें अपने लहू से धोए और हमारे बंधन और जुए उसके जलाली नाम से टूट जाए, मसीह यीशु के नाम से आमीन। अब हम प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और सिस्टर नीलम के साथ मिलकर खुदावंद की महिमा का गीत गाएंगे। सिस्टर नीलम है? जी सिस्टर नीलम है? नहीं सिस्टर। तो सिस्टर महिंदर के साथ हम मिलकर खुदावंद की महिमा का गीत गाएंगे। हाँ जी, सोनिया दी मम्मी जी हवा में पकारदा हाँ तू मेरी वलिया, हवा में पकारदा हाँ तू मेरी वलिया, जतों पकारा मैं तेनू बधामा, जतों पकारा मैं तेनू बधामा, मैं पकारदा हाँ हवा तू मेरी वलिया, मैं पकारदा हाँ हवा तू मेरी वलिया, जीव न होवे श्यामा गुरबाणी, जीव न होवे श्यामा गुरबाणी, हथ चुक कर दी दुआ यीशु जी साडी वलिया, मैं पकारदा हूँ हवा तू मेरी वलिया, मैं पकारदा हूँ हवा तू मेरी वलिया, जतों पकारा मैं तेनू बधामा, जतों पकारा तेनू बधामा, गल सुन ला मेरी कन ला, हवा मैं पकारदी हूँ तू साडी वलिया, हवा मैं पकारदी हूँ, जिਉ न होवे समा गुरबाणी, जिਉ न होवे समा दी गुरबाणी, हथ चुक कर दी दुआ मैं तेनू पकारदी हाँ हवा तू साडी वाले आ, मैं तेनू पकारदी हाँ, रहे न मेरा माही जुबाजल, रले न मेरा माही फाजल, चले न साडे नाल मैं पकारदी हाँ हवा तू साडे वाले आ, मैं पकारदा हवा तू साडे वाले आ, मैं पकारदा हाँ। धन्यवाद। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यस लॉर्ड। बेशक जब हम अपने खुदा को पुकारते हैं तो वो अपना आसमानी तख्त छोड़ के हमारे दरमियान आ जाता है और अपनी कुदरत को हम पर जाहिर करता है, और जो कुछ हम उससे मांगते हैं वो अपने जलाली नाम से हमें बख्श देता है। हालेलुया। जी आगे हम प्रशिश में आगे बढ़ेंगे और सिस्टर सोनिया के साथ खुदा का गीत गाएंगे। सिस्टर सोनिया। हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस गॉड। तेरा साडे ते शैताना कोई चलना नहीं जोर,
ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਤੇਰਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨਾ ਕੋਈ ਚੱਲਣਾ ਨੀ ਜ਼ੋਰ। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੀ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਉਠਾਵਾਂਗੇ, ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਵਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੇਰਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨਾ ਕੋਈ ਚੱਲਣਾ ਨੀ ਜ਼ੋਰ। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੀ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਅਸੀਂ ਵੱਧਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੱਧਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਾਕ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਕਰੂ ਦੀ ਅਗਨੀ ਬਰਾਵਾਂਗੇ, ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਵਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੇਰਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨਾ ਕੋਈ ਚੱਲਣਾ ਨੀ ਜ਼ੋਰ। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੀ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਦੇ ਕੇ ਤੰਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਡਰਾ। ਦੇ ਕੇ ਤੰਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਡਰਾ। ਚੰਗਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਏ ਖੁਦਾ। ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਏ ਖੁਦਾ, ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਏ ਖੁਦਾ। ਨਾ ਕਦੇ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਵਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੇਰਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨਾ ਕੋਈ ਚੱਲਣਾ ਨੀ ਜ਼ੋਰ। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੀ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਸਾਡੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਲੀਬ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਠਾਈ, ਸਾਡੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਲੀਬ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਠਾਈ। ਉਹਦੇ ਕੋੜੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਚੰਗਿਆਈ, ਉਹਦੇ ਕੋੜੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਚੰਗਿਆਈ। ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਚੰਗਿਆਈ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਚੰਗਿਆਈ। ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਚ ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਵਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੇਰਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨਾ ਕੋਈ ਚੱਲਣਾ ਨੀ ਜ਼ੋਰ। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੀ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਤੇਰਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨਾ ਕੋਈ ਚੱਲਣਾ ਨੀ ਜ਼ੋਰ। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੀ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। बहुत ही खूबसूरत गीत। खुदावंद आपको सिस्टर जी बरकत दे। बेशक जब हम रूपा के हथियारों से लैस होकर खड़े हो जाते हैं तो वो हमें संभाल लेता है और अबलीस हार जाता है और हमारी जिंदगियों से दूर भाग जाता है। हम अपने खुदा में दलेर होकर उसके सच्चे जंगजू अगर बन जाएं तो वो कभी हमें गिरने नहीं देता। खुदावंद का शुक्र हो। आगे हम सिस्टर सराफीन के साथ प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे। सिस्टर सराफीन। सिस्टर शीना मेरे सिस्टर शीना आ गई हैं? जी मैं तो कब से अपने नाम का वेट कर रही हूँ। जी पहले आपका नाम किया था वो। जी जी सिस्टर शीना। ओके, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। दीवाने 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 असी यसु नाम दे दीवाने
دیوانے 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 اسی یسو نام دے دیوانے ہوندے زندہ پاک نام وچ ہوندے زندہ پاک نام وچ شیطان تے پنیا 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 دیوانے 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 اسی یسو نام دے دیوانے 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 اسی یسو نام دے دیوانے اونے ایسا پیار وکھایا اپنی جان لٹائی سولی اتے چڑھ کے یسو خلقت ساری بچائی اوندے نا تو پترس وانگو اوندے نا تو پترس وانگو اپنی جان لٹانے لٹانے دیوانے 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 اسی یسو نام دے دیوانے 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 اسی یسو نام دے دیوانے ٹوٹیا دلانو جوڑنے والی اودی ذات نرالی بنجر دل دی دھرتی ہوتے کردا ہریالی آؤ سارے رل مل گاؤندے آؤ سارے رل مل گاؤندے داڑو تسی سن ونیا نوانیا دیوانے 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 اسی یسو نام دے دیوانے 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 اسی یسو نام دے دیوانے پریز دی لارڈ Praise the Lord. بے شک یسوع کا پاک لہو ہماری حفاظت کرتا ہے. ہم ہمیشہ یسوع کا لہو مانگتے رہیں اور اسی میں دلیر رہیں کیونکہ یسوع کا لہو ہماری حفاظت کرتا ہے. آمین. ہم شکر گزاری کریں خداوند کی اس خوبصورت پرستش کی. ہم نے جو نذرانے اس کے حضور چڑھائے وہ بخور کی مانند اس کے حضور میں پہنچے. عبادت میں آگے بڑھتے ہوئے میں آپ کی بھرپور تالیوں میں خدا کے زندہ کلام کو اور خدا کی بندی سسٹر شہین کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئیں اور خدا نے جو کلام اپنی بندی کے منہ میں رکھا ہے وہ دیں تاکہ ساری جانیں جو اس کے حضور جھک چکی ہیں سیراب ہوں. میں خداوند جی دعا کرتی ہوں آپ کی ممسو آپ کی سرما آپ کی ہاتمہ کو آپ کے پاک لہو میں چھپا دیتی ہوں. ان کو اور ان کی فیملی کو ان کے جیون ساتھی کو مہربان خداوند جی اپنے پاک لہو میں چھپا لیجئے. اپنی پاک اور کبھی ہاتھ بڑھا کر اپنی بچی کو چھو لیجئے اور اپنی بندی کو اپنا تایا ہوا کلام دیجئے جو آپ نے ان کے منہ میں رکھا ہے تاکہ ہماری بنجر دلوں کی زمینیں سیراب ہو جائیں اور آپ کی بندی بڑی دلیری اور جرات مندی سے آپ کی حضوری میں رہے. آپ اپنے پاک مذبح کی آگ سے اپنی بندی کی زبان کا ختنہ کیجئے اور پاک روح کی آگ سے ان کے دل کا ختنہ کر دیجئے اور بھاری برکت دیجئے تاکہ آپ کا زندہ کلام ان کے وسیلہ سے ہماری زندگیاں جو بنجر ہیں وہ سیراب ہوں. مہربان خداوند جی اپنی بندی کو روح کا تازہ مسا دیجئے تاکہ آپ کی بندی زمین کی انتہاؤں تک برکت پائے اور بہت ساری جانوں کو بچانے کا سبب بن سکیں. ہم یہ سب کچھ مانگ لیتے ہیں مسیح یسوع ناصری کے نام میں. آپ کی بھرپور تالیوں میں سسٹر شاہین. آمین آمین. پریز دی لارڈ. تھینک یو سسٹر تبسم. بہت خداوند آپ کو بڑی برکت دے اور خداوند اسی طرح اپنے نام اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرے اور خداوند کا مسا خداوند کی حضوری ہمیشہ آپ پہ چھائی رہے آپ کی فیملی کے اوپر اور آپ اسی طرح خداوند کے نام کو
اپنی زندگی سے اونچا کرتی رہیں، اور خداوند آپ کو ہمیشہ اپنی بازوں میں چھپا کے رکھے، پروں میں چھپا کے رکھے. پریز گاڈ، تھینک یو جیسس. خداوند کا شکر. جی ہمارے ساتھ ریڈنگ میں میرا خیال سونیا ہے اور سرافین ہے نا. سرافین نہیں ہے ہمارے ساتھ، تو اردو میں کوئی اگر ہماری ہیلپ کرے ریڈنگ کے لیے. کنزا آپ فارغ ہیں؟ آمین، تیار ہیں؟ اوکے سسٹر، تو بس ہم آپ کریں. ہاں جی میں کر سکتی ہوں. اوکے دونوں تیار. اچھا ہاں جی آپ جس کو بھی بول دیں کر لیں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں جی جی ہم نے کل استثنا کی کتاب اس کا 11 چیپٹر آدھا پڑھا تھا، کل نہیں پرسوں ہے نا، ٹیوزڈے کو ہے نا. تو آج ہم اسی کا آگے جو چیپٹر کا باقی کے ورسز ہیں وہ پڑھیں گے. میرا خیال ہے 17 ورس تک پڑھا تھا ہم نے، لیکن ہم نے بات 12 تک کی تھی، 12 ورس تک. تو اس سے آگے پڑھتے ہیں. جی تو بس ہم اور سونیا ہے ہمارے ساتھ ہے نا. سسٹر جی 12 ہاں جی آپ 13 ورس سے میں پڑھ لیں آخر تک ہے نا. اور زندہ سونیا ہے. کلام ہاں جی ہاں جی پڑھیں. سوری. خدا کے زندہ کلام میں یوں مرقوم ہے، اور اگر تم میرے حکموں کو جو آج میں تم کو دیتا ہوں دل لگا کر سنو، اور خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے اس کی بندگی کرو، تو میں تمہارے ملک میں عین وقت پر پہلا اور پچھلا می برساؤں گا، تاکہ تو اپنے غلہ اور میں اور تیل جمع کر سکے، اور میں تیرے چپایوں کے لیے میدان میں گھاس پیدا کروں گا، اور تو کھائے گا اور سیر ہوگا. سو تم خبردار رہنا تا ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل دھوکا کھائیں اور تم بہک کر اور معبودوں کی عبادت اور پرستش کرنے لگو، اور خداوند کا غضب تم پر بھڑکے اور وہ آسمان کو بند کر دے تاکہ می نہ برسے اور زمین میں کچھ پیداوار نہ ہو، اور تم اس اچھے ملک سے جو خداوند تم کو دیتا ہے جلد فنا ہو جاؤ. اس لیے میری ان باتوں کو تم اپنے دل اور اپنی جان میں محفوظ رکھنا، اور نشان کے طور پر ان کو اپنے ہاتھوں پر باندھنا، وہ تمہاری پیشانی پر ٹیکوں کی مانند ہوں، اور تم ان کو اپنے لڑکوں کو سکھانا، اور تو گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت انہی کا ذکر کیا کرنا، اور تو ان کو اپنے گھر کی چوکھٹوں پر اور اپنے پھاٹکوں پر لکھا کرنا، تاکہ جب تک زمین پر آسمان کا سایہ ہے تمہاری اور تمہاری اولاد کی عمر اس ملک میں دراز ہو، جس کو خداوند نے تمہارے باپ دادا کو دینے کی قسم ان سے کھائی تھی. کیونکہ اگر تم ان سب حکموں کو جو میں تم کو دیتا ہوں جان فشانی سے مانو اور ان پر عمل کرو، اور خداوند اپنے خدا سے محبت رکھو اور اس کی سب راہوں پر چلو اور اس سے لپٹے رہو، تو خداوند ان سب قوموں کو تمہارے آگے سے نکال ڈالے گا، اور تم ان قوموں پر جو تم سے بڑی اور زوراور ہیں، جہاں جہاں تمہارے پاؤں کا تلوا ٹکے وہ جگہ تمہاری ہو جائے گی، یعنی بیابان اور لبنان سے دریائے فرات سے مغرب کے سمندر تک تمہاری سرحد ہوگی، اور کوئی شخص وہاں تمہارا مقابلہ نہ کر سکے گا، کیونکہ خداوند تمہارا خدا تمہارا روب اور خوف اس تمام ملک میں جہاں کہیں تمہارے قدم پڑے پیدا کر دے گا، جیسا اس نے تم سے کہا ہے. دیکھو میں آج کے دن تمہارے آگے برکت
اور لعنت دونوں رکھے دیتا ہوں۔ برکت اس حال میں جب تم خداوند اپنے خدا کے حکموں کو جو آج میں تم کو دیتا ہوں مانو، اور لعنت اس وقت جب تم خداوند اپنے خدا کی فرما برداری نہ کرو اور اس راہ کو جس کی بابت میں آج تم کو حکم دیتا ہوں چھوڑ کر اور معبودوں کی پیروی کرو جن سے تم اب تک واقف نہیں۔ اور جب خداوند تیرا خدا تجھ کو اس ملک میں جس پر قبضہ کرنے کو تو جا رہا ہے پہنچا دے تو کوئی گرزیم پر سے برکت اور کوئی ابال پر سے لعنت سنانا۔ وہ دونوں پہاڑ یردن پار مغرب کی طرف ان کنانیوں کے ملک میں واقع ہیں جو جلجلال کے مقابل مورا کے بلوتوں کے قریب میدان میں رہتے ہیں، اور تم یردن پار اس لیے جانے کو ہو کہ اس ملک پر جو خداوند تمہارا خدا تم کو دیتا ہے قبضہ کرو، اور تم اس پر قبضہ کرو گے بھی اور اس میں بسو گے۔ سو تم احتیاط کر کے ان سب آئین اور احکام پر عمل کرنا جن کو میں آج تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آمین۔ آمین جی، تھینک یو تبسم، خداوند آپ کا بڑی برکت ہے۔ اور آج ہم نے دیکھا کہ اس چیپٹر میں کافی باتیں ہیں جو جس پہ کافی تو ہیں جن پہ ہم نے بات کی ہوئی ہے، اس لیے ہم اس کے اوپر دوبارہ سے بات نہیں کریں گے، لیکن کچھ باتیں جو میرے دل کو کہہ لیں ٹچ کی، میں اس پہ تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گی۔ پہلی تو جو ہم نے ٹیوزڈے کو بات کی، یہ جو ورس نمبر ہے 11 ہے نا، 11 جو آئے تھے، جس میں لکھا ہے کہ لیکن جس ملک پر قبضہ کرنے کے لیے تم پار جانے کو ہو وہ پہاڑوں اور وادیوں کا ملک ہے اور بارش کے پانی سے سراب ہوا کرتا ہے نا۔ تو اگر ہمارے درمیان کوئی ہے جس کو پتہ ہو کہ وادی کیسی ہوتی ہے، یا میرا خیال اگر سیڈرک کو تو ضرور پتہ ہوگا کہ وادی کس کو کہتے ہیں، کسی کو پتہ ہے؟ مطلب ابھی اسپرچولی نہیں میں بات کر رہی، ابھی جب زمین پہ ہمیں نظر آتا ہے یعنی وادی کیا ہوتی ہے؟ جی سیڈرک پتہ ہے؟ ہو گیا ہے اوکے اوکے چلو ٹھیک ہے، میں نے وادی سوچا وادی کا وادی کیا ہوتی ہے؟ سونا نہیں ہیلو، وادی ہاں وہ جی ہاں ہوتی جی ہے جہاں پہ ہاں جی، پہاڑ ہوتے ہیں، وادی لیک ہوتی ہے، ہم اکثر پہاڑوں کے گرمیوں میں جب گھومنے کے لیے سینٹر جاتے کی ہیں۔ جگہ ہوندی ہے۔ ہاں جی شینا ٹھیک کہہ رہی ہے۔ ہاں جی کاکے تو کی کہہ رہے ہیں؟ وادی ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ؟ ہاں بالکل۔ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਦਾਨੀ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ہاں ਉਹਨੂੰ ਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। اس طرح ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ہے ਉਹ ਵਾਦੀ۔ جی بالکل صحیح، گاڈ بلیس یو شینا اور سیڈرک، واقعی آپ نے صحیح آمین، ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں پڑھے ہیں ان کو پتہ ہے۔ تو لائک اس طرح ہوتی ہے وادی، ہے نا شینا؟ آپ گئے ہو کہہ رہے ہو سیر کے لیے کہ چاروں طرف ایک قسم کے پہاڑ ہوتے ہیں، جی اور اگر چاروں طرف پہاڑ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جب بارش ہوگی کچھ ہوگا تو وہ پانی کیا ہے خود بخود ہی ادھر آ کے اکٹھا ہو جائے گا وادی کے اندر، یعنی جو بیچ میں زمین ہوتی ہے نا کاکے؟ جی جیسے آنسو جھیل ہے یہاں پہ پاکستان میں۔ بالکل ہاں جی، تو وہ کیا ہوگا کہ پہاڑوں سے گھری ہوئی ہے، تو جب بھی کبھی یعنی بارش ہوگی یا کچھ ہوگا پانی ہوگا تو وہ نیچے آ کے وادی میں اکٹھا ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یعنی خداوند اسرائیلیوں سے بات کر رہا ہے کہ وہاں مصر میں تو تم کیا کرتے تھے کہ سبزی جب لگاتے تھے بیج بونے کے لیے
तो बाग में क्या करते थे, पाँव से खुद ही नालियां बनाते थे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, नालियां या जो भी कुछ है वो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। पानी जो है उन नालियों पे या उस वादी में जहाँ आप जा रहे हो वहां खुद ब खुद ही उसको जो है वो सैराब करेगी बारिश। बारिश का पानी यानी उस वादी को सैराब करेगा। तो अगर पहाड़ों के बारे में किसी को, मेरा ख्याल है वैसे सबको ही पता होगा क्योंकि सारे ही बड़े अच्छे स्टूडेंट हैं। तो खुदा यीशु मसीह ने पहाड़ के बारे में हमें बताया कि अगर राई के बराबर भी हमारे अंदर फेथ है ना, तो हम क्या कहेंगे, पहाड़ से भी कहेंगे तो वो अपनी जगह से हिल जाएगा। मतलब एक किस्म का हमारे फेथ को तशबीह दी है पहाड़ के साथ, है ना। तो इस तरह भी हम इसको रूहानी तौर पे देख सकते हैं, यानी जिस्मानी तौर पे तो हम देख रहे हैं कि इस तरह क्या होगा कि चारों तरफ पहाड़ होंगे और दरमियान में एक किस्म का कह लें हम है या वो वादी है जो सैराब हो रही है ना। तो अगर हमारा फेथ पहाड़ों की तरह होगा, क्योंकि खुदावंद क्या कह रहा है कि वो क्या है, पहाड़ों और वादियों का मुल्क है। यानी हम जहाँ पे जा रहे हैं वहां पे हम ऐसे ही नहीं जा सकते। अगर हमारा फेथ, हमारा जो भरोसा है, ईमान है, विश्वास है खुदावंद के ऊपर, तवक्कल है हमारा इस तरह का, जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम्हारा इतना सा यानी फेथ है, यानी जो कि पहाड़ों को हटा दे, मतलब कि हमारा फेथ इस तरह का होना चाहिए, हमारा ईमान खुदावंद पे, हमारा भरोसा जो है इस तरह का होना चाहिए, तब उस मुल्क में जा सकेंगे। तब हमारा जो है यानी जिस तरह ये कहा है कि उस मुल्क पे क्या करोगे, कब्जा कर सकोगे। यानी हम जिस तरफ जा रहे हैं, जैसा कि हमें पता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, यरूशलेम की तरफ, मुल्क कनान की तरफ हमारे जो सफर है वो जारी है सबका ही, है ना। तो अगर हमारा फेथ, जैसे अभी शायद हम शुरू में ही बात कर रहे थे कि प्रोफेसी होती है या कोई भी खुदावंद का कलाम आपके लिए होता है, तो उस पे अगर आपका फेथ नहीं है, आप उस पे स्टैंड नहीं लेते, तो वो नहीं पूरा हो सकता। अगर आप क्योंकि जो भी वादे बाइबल में किए गए हैं वो सब हमारे लिए हैं, वो सब यानी खुदावंद मेरे से और आपसे बात कर रहा है। लेकिन अगर हम उस पे ईमान रखेंगे, अगर विश्वास रखेंगे, तब वो हमारी जिंदगी में पूरा होगा, है ना। लेकिन अगर हम सिर्फ पढ़ते हैं और उस पे ईमान नहीं रखते, हम सोचते हैं शायद ये तो किसी और के लिए है, मेरे लिए नहीं है ना। तो इसका मतलब है फिर उस तरह का हमारा फेथ नहीं है, उस तरह हम क्या है, पहाड़ों से घिरे हुए नहीं है। हमारी जो बारिश है वो हमें सैराब नहीं कर रही। जिस तरह सिस्टर ने भी बड़ी अच्छी प्रेयर की, खुदावंद आपको बरकत दे सिस्टर तबस्सुम कि ये क्या करती है, जो खुदावंद का कलाम है वो क्या करता है, हमें सैराब करता है। तो इसलिए हम जो हैं पहाड़ों से घिरे हुए हैं। जिस तरह यरूशलेम जो है, हम यशायाह की महकताब में पढ़ते हैं कि यरूशलेम जो क्या है पहाड़ों से घिरा हुआ है। और अगर हम भी उस यरूशलेम की तरफ जा रहे हैं या उस मुल्क की तरफ जा रहे हैं, शहर की तरफ, तो इसका मतलब है हमें पहाड़ों से घिरा होना चाहिए। हमारा जो फेथ है, आपको याद होगा कि जब भी खुदा यीशु मसीह ने किसी को शिफा दी किसी के पर हाथ रख के या जिस तरह भी दुआ की, खुदावंद ने उसको क्या कहा कि जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। इसका मतलब है जो भी कुछ होगा वो हमारे फेथ से होगा, हमारे अम, ईमान से होगा। तो इसलिए हम जिस तरफ जा रहे हैं वो पहाड़ों से घिरा हुआ है, यानी ईमान के बगैर ये सब कुछ, इस पे कब्जा पाना, दुश्मन की फौजों पे कब्जा या फतह पाना, बगैर बगैर ईमान के हम नहीं पा सकते। इसलिए हम जो हैं, जो जो मसीही हैं, जो दुल्हन है, जो ओवरकमर है, वो उसको हमेशा पहाड़ों से घिरा हुआ होना चाहिए। यानी हमारा जो ईमान है वो इस तरह का, इस लेवल का हो कि हाँ, मुश्किलें आ रही हैं, तूफान आ रहे हैं, है ना, लेकिन हम क्या हैं, खड़े रहें। जिस तरह हम देखते हैं कि ये जमीन देखे जो दरमियान में है वो पहाड़ों से घिरी हुई है। तो जब तूफान आएंगे, आंधी आएंगे, तो उसको कुछ नुकसान नहीं होगा, है ना। तो इसलिए, लेकिन अगर साइडों में देखें पहाड़ नहीं होंगे, तो उसका मतलब है जरा सा भी कुछ होगा तो हम हिल जाएंगे।
हमारा ईमान जो है खुदावंद के ऊपर से हट जाएगा। हम जैसे इसी चैप्टर में ये आगे जहाँ पढ़ा कि तुम क्या हो बहक जाओगे, तुम्हारा दिल जो है वो धोखा खाएगा। हम ज़रा सा कुछ आंधी तूफान आएँगे तो हम घबरा जाएँगे, हम खुदावंद से पीछे हट जाएँगे, है ना? तो इसलिए हमारा फेथ का लेवल जो है वो इस तरह का होना चाहिए कि पहाड़ों से गिरा हुआ है। शायद जैसे मैंने एक दफ़ा आपसे शेयर किया था कि जब मैं अपनी फैमिली के लिए रोज़ा रख के दुआ कर रही थी, 40 दिन मैंने रोज़े में ठहरी थी, तो खुदावंद ने मुझे दिखाया कि मेरे इर्द-गिर्द ऊँची दीवारें खड़ी हैं। जैसे कह लें कि आसमान तक ऊँची हैं। तो खुदावंद ने मुझे दिखाया कि जो इब्लीस का कोई वार जो है वो तेरे ऊपर नहीं चलेगा, क्योंकि मैं अपने जो जैसे कह लें जनरेशन कर्स जो है, नस्ली गुनाह जो हैं, उनके लिए आज से कोई कह लें 7-8 साल पहले मैंने 40 दिन रोज़ा रखा था और सारे जो लानतें थी वो अपनी फैमिलीज़ के खिलाफ जो थी, उनको कैंसल किया था। तो खुदावंद ने मुझे दिखाया कि दीवारें खड़ी हैं ऊँची, तो मुझे कुछ नुकसान नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि खुदावंद ने मुझे घेरा हुआ था। मेरा ईमान जो था खुदावंद के ऊपर था, है ना? तो इस तरह का खुदावंद जो है, ईमान इस तरह का जो फ़ेथ है, वो अपने लोगों से, अपनी दुल्हन से वो चाहता है कि हो जिसको कुछ कोई मुश्किल आए, कोई परेशानी आए, वो हिला ना सके हमें। हम खुदावंद के ऊपर पूरा भरोसा रखें, है ना? तो तब हम जो है, जब बारिश होगी तो हम सैराब होंगे। क्योंकि हमारा फ़ेथ जो है, वो हमें उस जगह पे लेके जाएगा। हमारा ईमान जो है, हमें नए यरूशलेम की तरफ लेके जा रहा है। क्योंकि क्या करें, जो भी कलाम होता है, जैसे उस दिन अंजना टेस्टिमनी दे रही थी कि जो भी कुछ फ़र्ज़ करें मेरे ज़रिए खुदा बोलता है, तो वो उसको रिसीव करती है, कि नहीं ये मुझे करना ही करना है। मुझे इस पे फ़तह पानी है। मुझे अगर बीमारी के लिए फ़र्ज़ करें कोई प्रोफ़ेसी हुई है, नबूवत हुई है, कलाम हुआ है, तो वो उसको रिसीव करती है, उसको कहती है कि नहीं ये होना है, ये मुझे करना है इस पे। ये काम मुझे करना है, ये हुक्म खुदावंद की तरफ से है, मुझे इसे करना है, इस पे अमल करना है ना? इसको पूरा करना है। तो क्या करते हैं हम फ़ेथ पे खड़े हो जाते हैं, ईमान पे खड़े हो जाते हैं। तो फिर क्या है जो भी जैसे कह लें ब्लेसिंग है, जो बरकत है, वो हमारी ज़िंदगी में जिस तरह हमने इसी वर्ष में देखा कि वो जो सब्जियाँ लगा रहे थे बाग में, जो बीज बोया जा रहा था वो तो लगा रहे थे, वो बो रहे थे, है ना? लेकिन यहाँ पे हम 11वीं आयत में देखते हैं कि खुदावंद कह रहा है कि वहाँ हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगा, सिर्फ़ ईमान जो है हमारा वो खुदावंद पे होना चाहिए और बाकी जो काम है हमारा यानी शफ़ा लेनी है या किसी मुश्किल में है, परेशानी में है हमें, तो वो खुदावंद हमें खुद ब खुद उसमें से निकाल देगा। लेकिन हमारा फ़ेथ उसके ऊपर होना चाहिए, है ना? तो ये आयत मुझे बड़ी अच्छी लगी थी तो इसलिए उस दिन भी मैंने थोड़ी-सी इस पे बात की थी कि उस दिन 12 आयत पे की थी, लेकिन आज ये जो 11 आयत थी ये भी मुझे बड़ी अच्छी लगी कि हम पहाड़ों से घिरे हुए हैं। हमारा फ़ेथ का लेवल जो है इस तरह का होना चाहिए, तब हम उस पे फ़तह पा सकेंगे, उस नए यरूशलेम में, मुल्क कनान में दाखिल हो सकेंगे क्योंकि वो क्या है, खुदावंद की तरफ से हमें मिल रहा है। वहाँ पे हमें जैसे 10वीं आयत में है कि वहाँ वो खुद नालियाँ बनाते थे, खुद बीज बोते थे, है ना? लेकिन यहाँ क्या है खुदावंद जो है अ, हमारे लिए सब कुछ उसने तैयार किया। फिर 13 आयत में हम देखते हैं कि खुदावंद फिर से हमारे साथ बात कर रहा है कि और अगर तुम मेरे हुक्मों को जो आज मैं तुमको देता हूँ, दिल लगाकर सुनो और खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखो और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से उसकी बंदगी करो। तो ये भी हमने इस पे काफ़ी बात की है कि अगर हम अपनी सारे दिल से, अपनी सारी जान से खुदा से मोहब्बत रखेंगे, उसकी इबादत करेंगे, तब या उसके हुक्म मानेंगे, तब ये जो बरकतें हैं हमारी ज़िंदगी में फ़्लो करना शुरू करेंगी, है ना? तब जो है बहाली, आज़ादी, खुशहाली जो है, शफ़ा जो है हमारी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाएगी, है ना? लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर बरकतें वो जो हैं हमारी ज़िंदगी में नहीं आएँगी।
और फिर 14वीं आयत में हम देख रहे हैं, तो तुम्हारे मुल्क में ऐन वक्त पर पहला और पिछला मैं बरसाऊंगा, ताकि तू अपना गल्ला और मैं और तेल जमा कर सके। हाँ जी, ये बाइबल में आपको पता है काफी दफा इसकी पहली बरसात और पिछली बरसात के बारे में जिक्र हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि जो कोई पौधे वगैरह लगाता है, फसलें लगाता है, उसको मेरा ख्याल थोड़ा सा पता ही होगा कि पहली जो बरसात है फसल के लिए वो भी बहुत जरूरी होती है, और जो पिछली बरसात है यानी वो भी बहुत ज़रूरी होती है। तो बिल्कुल इसी तरह रूहानी तौर पे भी अ, लेकिन अगर हम जिस्मानी तौर पे देखें तो जो कोई पौधे वगैरह लगाता है, मैं आजकल नहीं लेकिन पहले बहुत जब पाकिस्तान में थी उधर, थोड़ा हम जब दुबई में थे तो बहुत लगाया करती थी। तो हम जब पौधा लगा बीज बोते हैं फ़र्ज़ करें, या तो क्या करते हैं उसको जब लगाते हैं ज़मीन में तो उसको थोड़ा नरम करने के लिए ज़रूर जैसे कह लें पानी जो है वो डालते हैं, या उसको नरम करने के लिए जब तो पानी जो है वो डालते हैं, या बारिश जो है वो उसके लिए बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि वो ज़मीन जो है पहले उसको नरम होना ज़रूरी है, फिर ही वो बीज जो है जैसे हमें सबको मेरा ख़्याल पता ही है कि बीज जब उसको ज़मीन में दबाया जाता है, बोया जाता है, तो पहले उसके अंदर जब ज़मीन पे बोया जाता है, तो पहले वो एक किस्म का कह लें टूटता है, और फिर उसके अंदर से वो पौधा जो है वो शाख जैसी जो है वो निकलती है। तो उसके लिए नरमी जो है ज़मीन के अंदर वो बड़ी ज़रूरी है। उसके बगैर क्या होगा कि वो बीज जो है वो सूख जाएगा, वो पौधा नहीं बनेगा, वो ज़मीन के जैसे कुछ तो शायद उसी में रह जाए ज़मीन में, या अगर वो निकलेगा भी, उसकी शाख जैसी निकलेगी भी, तो वो सूख जाएगी। जब तक उसको वो पानी जो है ना मिलेगा, जब तक वो बारिश जो है वो ना होगी, तो वो बीज जो है वो एक पौधे की शक्ल में, एक दरख्त की शक्ल में वो नहीं बन सकता। इसलिए जो पहली बरसात है, वो बहुत ज़रूरी है। और फिर जब वो कह लें पौधा बड़ा हो जाता है, तो जब उसको जैसे कह लें ख़ास गंदम की हम कहें तो, या कोई फ्रूट ही कुछ भी है, तो कहते हैं कि जब जो पिछली बरसात है, वो भी बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि जब वो फल जैसे कह लें उसके ऊपर लग गया है और जब बारिश होती है, तो उसके अंदर एक जो टेस्ट है, एक जो ग़िज़ाइयत है, एक उस फ्रूट के अंदर जो एक हम कहते हैं ना जूसी, या जो कह लें कि मीठापन है, वो उस सूरत में आता है जब पिछली बरसात होती है। नहीं तो वो जो फ्रूट है, उसके अंदर एक जो टेस्ट है, एक जो ग़िज़ाइयत है वो वैसी वाली नहीं आती, अगर जो पिछली बरसात है वो ना हो, है ना? तो ये एक हम जिस्मानी तौर पे थोड़ा-सा पिछली पहली बरसात और पिछली बरसात का हम देख रहे हैं। लेकिन अगर इसको हम रूहानी तौर पे देखें, तो जो पहली बरसात है, वो जब हमें पाक रूह का बपतिस्मा होता है, उसको पहली बरसात कहा गया है। वो होना बहुत ज़रूरी है, जैसे हमने स्टडी में सीखा था, जब आग के बपतिस्मे के बारे हम सीख रहे थे, तो पाक रूह जो है वो हमारे दिलों की ज़मीन को आके क्या करता है, नरम करता है। वो तैयार करता है कि जब अब कलाम का बीज बोया जाए, अब जो कुछ भी हमें सिखाया जाएगा वो जो बीज बोया जाएगा वो फिर फल लेके आएगा। वो एक पौधे की तरह जैसे कह लें हमारे ईमान को बढ़ाएगा, हमारे खुदावंद में बढ़ाएगा। तो इसलिए जो पहली बरसात है, यानी पाक रूह का बपतिस्मा, वो बहुत ज़रूरी है। और पिछली बरसात ये है कि जब हम खुदावंद के हुक्मों पे अमल करना शुरू कर देते हैं। जब खुदावंद यीशु मसीह की जो तालीम है, उसके शागिर्दों की जो तालीम है, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर पहली बरसात हो गई है, यानी हमें पाक रूह का बपतिस्मा हो गया, आग का बपतिस्मा हो गया है, लेकिन अगर हम उसपे अमल नहीं कर रहे, उसकी खुदावंद यीशु मसीह की तालीम पे, उसकी बातों पे, उसके शागिर्दों ने जो हमें तालीम दी, अगर उसपे अमल नहीं करेंगे, तो जो एक जैसे कह लें कि जो हम सीख रहे हैं कि हम उस मुल्क कनान में दाखिल नहीं हो सकते। वो पिछली बरसात अगर हमारे ऊपर नहीं हुई है, वो
सख्त तालीम जो है, वो जो ठोस ग़िज़ा जो है, वो हमें नहीं मिली या हमने नहीं उस पे अमल किया, तो इसका मतलब है हमारे अंदर वो जैसे खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा, वो जो नमक की मिसाल दी है ना, कि अगर हमारे अंदर नमक नहीं है, हमारे अंदर टेस्ट नहीं है, हमारे अंदर या शहद के साथ कलाम को तशबीह दी गई है ना, तो वो मज़ा नहीं है, वो मिठास नहीं है हमारे अंदर, तो इसका मतलब है तब भी हम उस मुल्क कनान में दाखिल नहीं हो सकते। इसलिए पहली बरसात भी बहुत ज़रूरी है और जो पिछली बरसात है, वो भी हमारी ज़िंदगियों में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमारे अंदर वो कलाम जो है, वो जड़ नहीं पकड़ा, वो पौधा नहीं बना, वो फल नहीं लगा, वो फ्रूट जो है हमारी ज़िंदगियों में नज़र नहीं आ रहा, वो टेस्ट जो है, हमारे अंदर अभी भी वही गंदगी भरी हुई है, वही हम गालियाँ निकाल रहे हैं, वही हम गुस्सा, नाराज़गी है हमारे अंदर, है ना? वही कुछ हम पुराने जो काम हैं हम कर रहे हैं, तो हमारे अंदर एक वो जो एक टेस्ट है, वो नमकीनी जो है हमारे कलाम में या वो मिठास जो है हमारे कलाम में, हमारी ज़िंदगियों में दूसरों को नज़र नहीं आ रही। बहुत से लोगों को पाकरू का बपतिस्मा होता है, लेकिन वो ऐसे ही पुरानी जैसे कह लें ज़िंदगी है, पुराने उनके बिहेवियर हैं, पुरानी वो है आदतें उनके अंदर, तो इसका मतलब है कि उनके ऊपर अभी जो पिछली बरसात है, वो नहीं हुई। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हम उस नए यरूशलेम में दाखिल हों, मुल्क कनान में दाखिल हों, तो ये दोनों बरसात जो है इसीलिए बार-बार, बार-बार आप कभी भी अभी गौर करना जब आप ये जो हम बाइबल खुद से पढ़ रहे हैं यानी आप अपने तौर पे भी पढ़ रहे हैं और इस स्टडी में भी जो हम बाइबल स्टडी कर रहे हैं, है ना? इसमें भी गौर करना कि बार-बार इसका ज़िक्र आता है कि पहली बरसात और पिछली बरसात, ये हमारी ज़िंदगियों में दोनों बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि अगर पहली बरसात नहीं हुई, हमारा दिल ही नरम नहीं हुआ, हमारे दिल अभी तक सख्त हैं, हम खुदा के कलाम को, उसके बीज को अपनी ज़िंदगियों में, अपने दिल में जगह ही नहीं दे रहे, है ना? अपने दिलों की ज़मीन को ज़रख़ेज़ नहीं किया, जैसे हमने ये ऊपर पढ़ा, ये जो वादियाँ हैं, ये भी उस चीज़ को शो कर रही हैं कि वो क्या करते हैं, हमारे दिल की ज़मीन को आके क्या करते हैं ज़रख़ेज़ करती हैं, यानी वो नरम बनाती है हमारी और जो भी उस पे पौधा लगाया जाएगा, जो भी बीज बोया जाएगा, वो फल लेके आएगा, है ना? जब कलाम का बीज बोया जाएगा, तो वो ज़रूर फल लेके आएगा, लेकिन अगर हमारी ज़िंदगियों में वो कलाम का बीज हम जैसे कह लें अपने दिल को सख्त किया हुआ, तो जैसे खुदा यीशु मसीह ने बीज बोने वाले की मिसाल दी है ना, तो जो सख्त ज़मीन पे बीज बोया जाएगा वो फल नहीं लाएगा, वो अ, उगेगा ही नहीं, है ना? तो इसलिए ये जो वादियाँ हैं ये क्या करती हैं क्योंकि ये देखें पानी जो है क्या है वो सराब करता है, इसीलिए हम जब बीज बोया जाएगा तो वो फल लेके आएगा। है ना? तो क्योंकि क्या है, वो पानी है वहाँ पे, वो नरम है ज़मीन। बेशक साइडों पे क्या है देखिए पहाड़ है, लेकिन वो ज़मीन जो दरमियान में होगी वो नरम होगी। इसलिए जब उस पे बीज बोया जाएगा, तो वो ज़रूर फल लेके आएगा, है ना? और जब हम उसके कलाम पे, उसके हुक्मों पे अमल करेंगे, तो वो जो फ्रूट है उसमें एक जैसे कह लें वसाइयत आएगी, टेस्ट आएगा, है ना? कई दफ़ा होता है कि फल तो हमारी ज़िंदगियों में काम कर रहे होते हैं। हम कहते हैं वो अ, ये बंदा तो बहुत अच्छा है, ये बड़ा नरम दिल है, ये बड़ा मेहरबान है ना? कई दफ़ा होता है ये, बल्कि बहुत ज़्यादा होता है कि हमारे मसीही जो बहन-भाई हैं अ, उनकी ज़िंदगियों में ये जो फल हैं, वो काम कर रहे हैं। लेकिन अ, जैसे एक क्या कहना चाहिए कि जो हमने सीखा था कि जो फल हैं, जो रूहानी फल हैं, वो सारे हमारी ज़िंदगी में काम नहीं करते। हम किसी एक एरिया में तो बड़े अच्छे होते हैं, हमारी आदतें बड़ी अच्छी होती हैं, लेकिन दूसरे एरिया में हमारे अंदर एक बड़ी ही कह लें कड़वापन होता है दूसरों के लिए, हमारे अंदर एक नफ़रत भरी होती है ना? लेकिन अगर हम खुदावंद यीशु मसीह की तालीम पे या ये खुदावंद के जो हुक्म हमें मिले हैं, जैसे कल भी हमने पढ़ा वो कि जो यूहन्ना की इंजील में कि खुदावंद यीशु मसीह ने भी यही हमें कहा कि जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरे हुक्मों पे अमल करे, है ना?
तो इसलिए जब हम खुदा के हुक्मों पे अमल करेंगे, वो फल हैं जो वो अपने आप हमारी ज़िंदगी में काम करना शुरू हो जाएँगे। जैसे कि ये क्या है, हमारा सिर्फ़ फ़ेथ ही होगा, हम यानी पहाड़ों से गिरे हुए हैं, तो वो हमारे दिलों की ज़मीन को खुद ही ज़रख़ेज़ करना शुरू हो जाएगा, खुदावंद पाक रूह जो है ना? लेकिन पहले ये क्या है, हमें खुदावंद पे पूरा भरोसा होना चाहिए और अपने दिलों की ज़मीन को जो है अ, नरम जो है वो करें, ताकि खुदावंद का जब कलाम का बीज बोया जाए, तो वो फल लेके आए और हमारे ना सिर्फ़ फल हो बल्कि उसके अंदर एक जैसे कह लें कि टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, नमकीनी होना। जैसे कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अगर उसके अंदर नमक की नमकीनी चली जाए, उसका टेस्ट चला जाए, तो क्या है वो रोड पे फेंकने के, उसको रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, अगर टेस्ट नहीं है हमारे अंदर। तो इसलिए मसीही जो हैं, हम जो हमारे अंदर ना सिर्फ़ फल होना ज़रूरी है, बल्कि एक जो उसमें एक गसाइयत होती है, एक जूसी होता है, यानी वो चाहे गंदम का बीज वो दाना जैसा जो होता है, वो एक उसमें एक टेस्ट होता है। आप सब अगर उसको खाली खा के देखें, है ना? तो वो एक बड़ा-सा होता है, कुछ सूखे-सूखे होते हैं, होती वो भी गंदम ही है ना? लेकिन एक जो होता है बड़ा जैसे कह लें भरा-भरा सा और जूसी जैसा कह लें होता है और उसके अंदर एक गंदम का खुद एक अपना एक टेस्ट होता है, अगर किसी ने कच्चा खाया है तो। तो मैंने तो काफ़ी दफ़ा उसको जैसे कह लें टेस्ट किया है। तो एक उसके अंदर एक अपना गंदम का एक टेस्ट होता है, जब उसको बीज को वो जो गंदम का दाना है अगर उसको खा के देखें, है ना? तो हमें भी गंदम से तशबीह दी गई है ना? जिस तरह अगली ही हिस्से में इसी 14 आयत में देखते हैं कि लिखा है कि ताकि तू अपना गल्ला और मैं और तेल जमा करे, है ना? यानी हमें गल्ले से भी तशबीह की दी है कि अनाज से तशबीह दी है कि शायद आपको याद हो कि उसमें लिखा है मेरा ख़्याल अय्यूब नबी ने कहा शायद और या दाऊद ने, सॉरी मुझे याद नहीं है, कि वो खुदा का बंदा कहता है, खुदा का नबी, कि मैंने अपनी अ, जो जिस्मानी ग़िज़ा है उससे भी ज़्यादा खुदा के कलाम को जमा किया है या ज़ख़ीरा किया है ना? तो इसलिए जो गल्ला है, जो अनाज है, जो गंदम है, गंदम के दाने जो हैं, उसको खुदा के कलाम से भी तशबीह दी गई है। इसलिए यहाँ पे हम इस आयत में हम देखते हैं 14वीं आयत में कि लिखा है कि अपना गल्ला और मैं और तेल जमा कर सकें। जब हमारे ऊपर यानी पहली बरसात और पिछली बरसात खुदावंद बरसाएगा, ताकि वो गल्ले को जैसे आप हम कलाम को कहते हैं कि जमा करना ज़रूरी है, यानी अपने दिलों में या जैसे कह लें ज़ुबानी याद होना हमें चाहिए। जिस तरह के हमें पता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया था। ख़ैर वो तो चलें खुद खुदा उनका कलाम है, खुद खुदा है, लेकिन अगर हम देखें तो उसने किससे जवाब दिया था? कलाम से जवाब दिया था। शैतान को जब आज़माइश आई थी, तो उसने क्या किया था? अ कलाम से उसको हराया था, जैसे सोनिया भी गीत गा रही थी कि तेनू वचना दे नाल असीं हरावांगे। तो अगर वचन हमारे अंदर है, कलाम हमारे अंदर है, हमने ज़ख़ीरा किया हुआ है, तो जब मुसीबत आती है, तंगी आती है, तकलीफ़ आती है, तो शैतान फ़र्ज़ करें हमारे कान में सरगोशी कर रहा होता है कि जी, तूने तो ठीक नहीं होना, तूने तो इसी उस जैसे कह लें बीमारी में मर जाना है, लेकिन आपने उसको कलाम में से जवाब देना है, वचन में से जवाब देना है, नहीं, मेरे खुदा ने, मेरे खुदा यीशु मसीह ने मेरे लिए खून बहाया, मेरी शिफ़ा के लिए खून बहाया है ना? और यानी हम उसको क्या कर रहे हैं? जवाब दे रहे हैं, हम तलवार चला रहे हैं। कलाम की जो तलवार है, वचन की जो तलवार है, उसके ऊपर चला रहे हैं और उसकी बात को जैसे कह लें हमने झूठा किया, उसको हमने जैसे कह लें हरा दिया है और हम उस पे स्टैंड ले रहे हैं, उस वचन पे, उस कलाम पे कि मेरे खुदा ने, मेरे यीशु ने मेरी शिफ़ा के लिए खून बहाया है, मेरी शिफ़ा के लिए उसने कोड़े खाए हैं, इसलिए मुझे कुछ नहीं हो सकता, है ना? या जिस तरह सोनिया ने अभी गीत में गाया कि चाहे हमें शिफ़ा मिले या ना मिले, तब भी हम तेरी बात को नहीं मानेंगे। यानी शैतान की बात को नहीं मानेंगे, है ना? कुछ भी हो जाए, शिफ़ा हमें मिले या ना मिले, कोई बात नहीं है। लेकिन हम खुदावंद के कलाम पे पूरा भरोसा रखेंगे, ईमान रखेंगे, है ना? तो इसलिए कलाम को जिस तरह
खुदाम का नबी कहता है कि मैंने क्या किया है, ज़रूरी खुराक से भी ज़्यादा अपने अंदर जमा कर लिया है, ज़ख़ीरा कर लिया है। इसलिए हमें भी क्या करना है, ज़ख़ीरा करना है। कलाम को पढ़ें जितना भी शायद सेड्रिक को पता है कि वो जो पास्टर है एक, है ना, वो कहता है कि महल उसने कितने साल बाइबल को पढ़ता रहा। ऐसे जैसे कह लें उसने ज़ुबानी रट लिया था, एक पास्टर है महल। तो इसी तरह हमें भी खुदा के कलाम को, जैसे आपको पता है ये जो यहूदी लोग हैं, ये जो 5 किताबें हम पढ़ के भी हमें बहरहाल ज़ुबानी याद नहीं होती, यानी लेकिन वो ज़ुबानी ये 5 किताबें जो हैं ना, ये तोरा की, ये पैदाइश से लेके तशना तक, है ना, ये क्या करते हैं, वो ज़ुबानी इसको याद करते हैं, उनको याद होती हैं। ये अगली ही आयत में हम देखेंगे कि वो क्या करते थे, ज़हन नशीन कर लेते थे इन 5 किताबों को। इसलिए कलाम को अपने अंदर ज़ख़ीरा करें, है ना? तो ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए कलाम जो है हमें पता है वो खुदावंद यीशु मसीह को भी रूहानी तौर पे शो करता है ना? हमें पता है। और मैं जो है, मैं का भी हमें पता है कि ये क्या है, खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया था, पानी से मैं बना दी थी। तो ये क्या करती है, यानी मैं जो है, यानी खुदावंद यीशु मसीह का यानी कलाम जो है, सॉरी क्या उम, जो खून था, वो क्या करता है, हमारी ज़िंदगियाँ तब्दील कर देता है। क्या किया था, मैं जब उसमें मटकों में पानी भरा था, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया उसको मैं में तब्दील कर दिया। तो ये क्या करती है, जब हमारी ज़िंदगी में खुदावंद यीशु मसीह का खून आता है, हम लेते हैं, तो वो क्या करती है, हमें तब्दील कर देती है, हमें नया बना देती है। जिस तरह अ, अंजना ने अपने जो खून के बारे में मैसेज दे रही थी, तो उसने बोला कि वो जो अ, काइन ने जब हाबिल को मारा था, तो वो जो खून हुआ था, वो जो उसके अंदर गुस्सा था भरा हुआ, उस पे यीशु का खून लगाएँ तो वो तब्दील हो जाएगा। वो गुस्सा जो है वो यीशु के खून से क्या होगा, वो ख़त्म हो जाएगा हमारे अंदर से, जो हमारे अंदर भरा हुआ है ना? तो ये मैं क्या करती है, हमें तब्दील कर देती है। इसलिए ज़रूर खुदावंद यीशु मसीह की जो मैं है जो हमारी ज़िंदगी को तब्दील करने के लिए, जैसा कि हमने सीखा कि ये ना सिर्फ़ खुदावंद यीशु मसीह का खून जो है, हमें जब हम लेते हैं तो हमारी जो अंदर की बीमारियां हैं या अंदर के अंदरूनी जो दुख हैं, दर्द हैं, उनको खुदावंद का जो खून है वो शिफा देता है अंदर से, जो हम किसी से कह नहीं सकते। ऐसे दुख, ऐसी तकलीफें, ऐसी बीमारियां, हम कहते हैं ओ जी मेरे दर्द हो रहा है। अब किसी को तो नजर नहीं आ रहा, वो तो आप एक्सरे करेंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे, उसमें भी वो दर्द जो है वो नजर नहीं आएगा। लेकिन मेरे यीशु को, आपके यीशु को वो दर्द जो है वो नज़र आता है, वो महसूस करता है, तो वो तब्दील कर देगा, वो हमें शिफ़ा दे देगा। तो इसलिए इस मैं को भी लेना हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। इसीलिए देखिए क्या आ रहा है, और फिर तेल का भी आपको पता है कि तेल जो है, जैसे कल भी हमने जो खुदावंद ने हमें रोया दिखाई कि खुदावंद जो है हमें तेल से मसा कर रहा है। और तेल जो है वो हमें पता है कि जब कोई खिदमत या किसी को जैसे किसी भी काम के लिए चुना जाता है, तो उसको मसा किया जाता है तेल से। जैसे बादशाह को, जैसे दाऊद नबी को मसा किया सैमुअल नबी ने, है ना, तो तेल से किया, है ना। तो किसी भी खिदमत के लिए, जैसे आप फर्ज करें कि गीत ही हम इस जैसे ग्रुप में गाते हैं या प्रिसाइड करते हैं या कलाम या रीडिंग करते हैं बाइबल, तो खुदावंद हमें पहले क्या है उस खिदमत के लिए मसा करता है, वो तेल हमारे ऊपर अंडेला जाता है। तो इसलिए ये तेल जो है ये भी हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है, क्योंकि हम उसके बगैर खुदावंद का कोई काम, जैसे कह लें कोई खिदमत जो है वो नहीं कर सकते, है ना, जब तक खुदावंद हमें नहीं चुनता। जैसे हमने उसमें सीखा जो पाखरू की स्टडी थी, उसमें सीखा कि खुदावंद जो है हमें नेमतें और खिदमतें अपनी मर्जी से देता है। हम नहीं अपनी मर्जी से कोई खिदमत कर सकते कि जी हाँ, जैसे कि खुदावंद का जो कलाम है वो शायद आपको बहुत ज्यादा आता हो, लेकिन अगर खुदावंद ने आपको नहीं चुना तो आप उसको जैसे कह लें कि दूसरों के साथ शेयर नहीं कर सकते। कोई ये मौका नहीं आपको इस मिलता जिंदगी में। हालांकि आपको कलाम बड़ा आता होता है,
बड़ी बाइबल आती होती है, लेकिन खुदावंद ने अभी आपको मसा नहीं किया उस खिदमत के लिए, उस नेमत जो खुदा ने आपको दी हुई है ना? उसके लिए अभी आपको मसा नहीं किया। इसलिए तेल जो है, ये भी हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए खुदावंद जो है अपनी खिदमत के लिए खुद लोगों को चुनता है। अ, जैसा कि आपको पता ही है, खुदावंद यीशु मसीह ने भी क्या किया था, अपने शागिर्दों को खुद से चुना था। आवाज़ जैसे कह लें, या आपको पता होगा कि एलिय्याह नबी ने भी जब एलीशा को चुना था, तो खुद चुना था, है ना? उसने वो मेरा ख़्याल हल चला रहा था खेतों में, और एलिय्याह नबी ने उसको बुलाया था खिदमत के लिए, है ना? और खुदावंद यीशु मसीह ने भी जैसे पतरस को और उसको यानी अपने शागिर्दों को जब चुना, तो वो मछलियाँ पकड़ रहे थे, है ना? तो इसलिए खुदावंद जो है खिदमत जो है हमें खुद देता है। जैसे मैं अपना भी कहूँगा ना कि खुदावंद मुझे तो कुछ नहीं आता था, या जैसे हम पतरस का भी देखते हैं कि उसको तो हमने जावेद से सीखा कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन खुदावंद ने उसको खिदमत के लिए बुला लिया, और जब उसको खिदमत के लिए बुलाया, तो खुदावंद का बंदा हमें पता है कि कितनी दिलेरी से खुदावंद का कलाम जो था सुनाता था, और खुदावंद का मसा उसके ऊपर इतना जैसे कह लें गहरा ठहरा होता था कि जहां-जहां से वो गुजरता था, उसका साया ही अमाल की किताब में लिखा हुआ है कि उसका साया साया ही पड़ता था बीमारों के ऊपर, तो लोग शिफा पाते थे। इतना गहरा मसा, इतनी गहरी हजूरी पतरस के ऊपर ठहरी हुई थी खुदावंद की, है ना? तो इसलिए खुदावंद ने उसको जब चुना, तो खुदावंद का मसा उसके ऊपर ठहरा रहता था। इसीलिए जब खुदावंद हमें भी किसी काम के लिए, किसी उसके लिए चुनता है, तो खुदावंद का मसा हमारे ऊपर ठहरा होता है। हम खुद से कुछ नहीं कर रहे होते। यानी जैसे कह लें, ये कलाम ही कह लें, तो मैं खुद से कुछ नहीं कर सकती। मेरे अंदर कोई एक जैसे कह लें कोई समझ, कोई अक्ल, कुछ भी नहीं मुझे पता। लेकिन जब खुदावंद अ अ, ने चुना, तो खुदावंद ने एक जैसे कह लें वो एक हिकमत जो थी, एक अकल जो थी, वो खुद से ही अम, मेरे अंदर जैसे कह लें काम करना शुरू हुई, और कलाम को उसको कैसे थोड़ा खोलना है, कैसे उसकी थोड़ी तशरीह करनी है। मतलब वो थोड़ा-थोड़ा करके अभी सीख रही हूँ, तो वो आना शुरू हो गई। यानी मैं खुद से कुछ नहीं करती। लेकिन खुदावंद का कलाम जो है वो खुद ही अपने भेद जो है अपने लोगों के ऊपर खोलना शुरू हो जाता है। तो इसलिए खुदावंद जो है अपने लोगों को खुद से मसा करता है, खुद ये तेल जो है उनके ऊपर उंडेलता है। तो इसलिए कभी भी हम अपनी मर्जी से, हमारे एक पास्टर हैं, उसको अ, सोनिया को पता है ना, हमारे चीफ पास्टर थे, पास्टर थियो थॉमस, तो कहते हैं कि वो 10 दफ़ा गए कि यानी पास्टर बनने के लिए, खुदावंद की खिदमत के लिए, लेकिन खुदावंद ने उसको नहीं चुना। लेकिन जब 11वीं दफ़ा वो गए, तो फिर खुदा ने उसको चुना, है ना? तो इसलिए हम खुद कई दफ़ा अपनी मर्ज़ी से जाते हैं, लेकिन जब तक खुदावंद की मर्ज़ी ना हो, खुदावंद उसको मसा ना करे, तब तक खुदावंद उस बंदे को नहीं लेता, है ना? हम अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकते जब तक कि खुदावंद हमें मसा नहीं करता। खुदावंद जो वो तेल है मसा का हमारे ऊपर नहीं उंडेलता, तब तक हम वो वाली खिदमत जो है उस तरह से नहीं कर सकते। और अगर कुछ लोग आते भी हैं अपनी-अपनी मर्ज़ी से, तो उनकी खिदमत जो है हम देखते हैं कि वो कामयाब नहीं होती। वो कहीं न कहीं फिर से छोड़ के चले जाते हैं, या ऐसा जो फल है उनकी खिदमत में नज़र नहीं आता, है ना? लेकिन अगर खुदावंद ने जिसको चुना होता है, तो ज़रूर उसकी खिदमत में एक जो फ्रूट है वो नज़र आते हैं। तो इसलिए ये जो ये 14 और 15 आयत है, ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी कि खुदावंद क्या है, पिछली बरसात और पहली बरसात हमारे ऊपर करता है। और फिर हम देख रहे हैं कि अगली आयत में है कि अगर हम भटक जाएँगे, अगर हम जैसे कह लें कि बहक गए और गैर मबूतों के पीछे चलना शुरू हो गए, उनकी इबादत करना शुरू हो गए, तो इसका मतलब है फिर हमारे ऊपर वो मींह जो है, वो बारिश जो है, वो नहीं बरसाएगा। फिर जो है हमारी जो ज़मीन है, जो यानी हमारे दिलों की ज़मीन जो है, वो ज़रख़ेज़ नहीं होगी। हमारी
या फिर हम जो जैसे कह लें कोई भी खिदमत कर रहे हैं उसमें कोई हमें रिजल्ट नहीं मिलेंगे, हमारी खिदमत जो है वो उसमें कुछ जैसे कह लें लोगों को बरकत नहीं मिल रही होगी, लोगों की जिंदगियां तब्दील नहीं हो रही होंगी। तो इसलिए खुदावन जो है वो मी बरसाना जो है वो कलाम का कह लें, और वो जिंदगियां जब तब्दील होती हैं हमारी अपनी और हमारे वसीला से दूसरों की, वो नहीं होगी अगर हम दूसरे दूसरे कामों में या दूसरे गैर महबूदों के पीछे जो है चलना शुरू हो जाएंगे। तो हमारी जिंदगी में से वो जो मसा है खुदावन का, वो जो तब्दीली लेके आते हैं वो नहीं होगा। इसलिए खुदावन जो है यहाँ पे हमारे साथ ये बात कर रहा है ना। और फिर आगे जो आयते हैं उसमें हमने सीखा हुआ है कि जो माथे पे यानी वो बांधा करते थे यहूदी लोग, वो फिजिकली बांधा करते, लेकिन हम अभी रूहानी तौर पे हमें कहा है कि जो कलाम है उसको सीखें, है ना? ज़हन नशीन करें, है ना? और इसमें एक और आयत मुझे बड़ी अच्छी लगी कि जहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो 24 जो वर्स है जिसमें लिखा है, जहाँ-जहाँ तुम्हारे पाँव का तलवा टिके वो जगह तुम्हारी हो जाएगी। तो इससे भी हमें ये पता चलता है कि अभी जैसे हमने उस खून की स्टडी में खुदा यीशु मसीह के खून की उसमें सीखा कि जहाँ-जहाँ यीशु का खून अ, लगाते हैं हम, वो ज़मीन पाक होती है। अभी सारी जो ज़मीन है वो पाक नहीं हुई। अभी हम जहाँ-जहाँ खुदा यीशु मसीह का खून लगाएँगे वो जगह पाक होगी। तो इसी तरह यहाँ पे भी हमें ये वर्स में मिलता है कि जहाँ-जहाँ तुम्हारे पाँव का तलवा टेकेगा वो जगह हमें मिलेगी। यानी अभी हमें ये सारी ज़मीन जो है या हमारा जो हिस्सा है वो हमें जो 1000 साला बादशाही है उसमें हमें मिलेगा। लेकिन अभी ये है कि जहाँ-जहाँ हम जाते हैं, क्योंकि क्या है हमारे ऊपर खुदावंद का मसा ठहरा हुआ है। हम खुदावंद यीशु मसीह के खून में छुपे हुए हैं। तो इसलिए जहाँ भी जाएँगे, चाहे जो प्लेस है या हमारे घर हैं, तो इसका मतलब है वहाँ पे खुदावंद की हज़ूरी हमारी वजह से यानी ठहर जाएगी, और वहाँ पे क्या क्या खुदावंद का जो मसा है ठहरना शुरू हो जाएगा। हमारे ऊपर क्योंकि ठहरा हुआ है, अगर हम वाक़ई हमारे ऊपर मसा ठहरा हुआ है, तो हमारे वजह से कह लें या हमारे अंदर जो खुदावंद यीशु मसीह के हम खून में छुपे हैं, तो इसलिए वो जगह जो है वो हमारी होती जाएगी, हमें कामयाबी, तरक्की जो है मिलना शुरू हो जाएगी, है ना? तो इसलिए ये आयत मुझे बड़ी अच्छी लगी। और एक और आयत है जो हम देखते हैं कि जिसमें ज़िक्र है कि वो पहाड़ हैं जहाँ पे अ, बरकतें और लानतें खड़े होके जो अ, इस्राएली कौम है, उन्होंने बोली थी, सुनाई थी, है ना? तो ये हम अगले चैप्टर में जाके इस तशना के पढ़ेंगे थोड़ी डिटेल के साथ। लेकिन यहाँ मैं सिर्फ इतना जैसे कल भी मैं परसों मैंने बात की थी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि पूरा पहाड़ है जिस पे बरकतें जो थी सुनाई गई थी, और इस्राएली कौम ने कहा था आमीन, है ना? यानी और लानतें सुनाई गई थी। तो इस पे हम बाद में बात करेंगे अगले चैप्टर में जाके। तो लेकिन ये मुझे बात अगर हम रूहानी तौर पे देखें तो बड़ी अच्छी लगी कि अगर बरकतें जो हैं वो एक पूरा पहाड़ है, है ना? यानी वो बहुत ज़्यादा हैं। तो लानतें भी बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम खुदावंद के हुक्मों को जिस तरह के इसमें महज़ 28 आयत में लिखा है कि अगर तुम फर्माबरदारी नहीं करोगे खुदावंद की, तो लानतें हमारी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाएँगी। तो इसका मतलब है कि वो लानतें जो हैं वो भी पूरा पहाड़ है, वो भी बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा, यानी उनकी कोई हम कह सकते हैं कि कोई तादाद नहीं है, तो वो हमारी ज़िंदगी में काम करना शुरू हो जाएँगी। इसलिए जैसे कह लें मेरा पूरा जो एक कह लें फ़ोकस होता है या एक होता है कि हम फर्माबरदारी में चलें, खुदा उनके हुक्मों पे चलें ताकि हमारी ज़िंदगी में बरकतें आना शुरू हो जाएँ, खुशहाली, बहाली, शिफ़ा जो है वो फ़्लो करना शुरू हो जाए हमारी ज़िंदगी में। लेकिन अगर
फरमान बरदारी में नहीं चल रहे, ताबेदारी में नहीं चल रहे, तो इसका मतलब है ये जो लानते हैं उसका पहाड़ हमारे ऊपर, हम कहते हैं ना वो मुश्किलों का पहाड़ मेरे ऊपर डिग गया, तो क्या है वो असल में लानते हमारी जिंदगी में काम करना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए अगर मैं अपना भी कहूँगी, हम सभी कोशिश करें कि फरमाबरदारी में जिंदगी गुजारें, खुदा उनके हुक्मों पे अमल करने की कोशिश करें। हमारी मदद जो है खुदावंद पाक रूह हमारी मदद करता है, उसके फरिश्ते हमारी मदद करते हैं, लेकिन हमें सिर्फ अपने आप को पेश करना है कि हाँ खुदावंद मैं तेरी फरमाबरदारी में, तेरी ताबेदारी में मैं चलना चाहता हूँ। तो हमारी मदद जो है वो आसमान से हमारी कुमक आती है, जिस तरह मेरा ख्याल 121 ज़बूर में लिखा है ना शायद, कि हमारी मदद कहाँ से आती है, सहून से आती है। तो इसलिए हमारी मदद जो है वो खुदावंद करता है, वो अपने फरिश्तों को भेजता है। और जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह को तकवीत देने के लिए फरिश्ते जो थे आसमान से आए थे, तो बिल्कुल इसी तरह हम सिर्फ अपने आप को कह लें कि पेश करें, तो खुदावंद जो है मदद जो है आसमान से भेजेगा, सहून से भेजेगा, अपने तख्त से भेजेगा, ताकि हम उसकी फरमाबरदारी में जिंदगी गुजार सकें। तो ये लानते जो हैं, ये लानतों को जो पहाड़ है वो हमारी जिंदगी में नहीं आएगा या उस तरह से काम नहीं करेगा। तो खुदावंद मुझे भी और आप सबको भी आज के कलाम के वसीला से बरकत दे, और हमारी जिंदगियों में ये जो बरकतों का पहाड़ है हम ये रिसीव करें, ये हम कबूल करें कि खुदावंद ने, क्योंकि खुदावंद ये चाहता है कि ये बरकतों के जो पहाड़ हैं या बरकतें जो हैं हमारी जिंदगी में फ्लो करें। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे, मुझे भी। गॉड ब्लेस यू। बैक टू तबस्सुम। जी आज का खूबसूरत कलाम हमारी जिंदगियों में आए और हमें बड़ी बरकत दे। सिस्टर जी आपने बहुत अच्छा कलाम दिया, और खुदा इस कलाम के वसीला से हमारे तमाम बंधन जो है खोल दे और एक एक जान को बरकत दे। आमीन आमीन। आमीन। अब हम क्लोजिंग प्रेयर सिस्टर सोनिया के साथ करेंगे। जी, praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. 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 Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. 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 Jesus, 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 Jesus. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. 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 Oh, Rabba Sandara 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 Sandara. Hallelujah. 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 Rabba Sandara 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 Sandara. Ore Shri Kattare Kattare Re Bere 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 Bere. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. 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 Rabba Rabba Sandara. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise Yes, the Lord. Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Praise the Lord. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Yes, Thank Lord. you, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Thank Yes. you, thank you, thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. तारीफ 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 खुदावन आज दिन वास्ते लॉर्ड जीसस है तारीफ हो लॉर्ड Yes, जीसस Lord. Yes, Lord. धन्यवाद खुदावन खुदावन तू ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਖੁਦਾवन ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਲॉर्ड जीसस हालेलुया यस लॉर्ड Yes, थैंक यू Lord. Yes, थैंक Lord. यू Yes. खुदावन लॉर्ड जीसस ਸਾਡੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਲॉर्ड जीसस ਕਿ ਇਸ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕੀਏ ਲॉर्ड जीसस ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ खुदावन लॉर्ड Yes, Lord. हालेलुया Yes,
Oh, thank you, Lord Jesus. ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਗੋਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ oh Lord, hallelujah. Thank you, Jesus. ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਬਹਾਇਆ Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Yes, Lord. ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਮਹਿਮਤ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ Lord Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, Lord. God. Yes, Thank you, Lord. Lord. Thank you, Jesus. ਤੇ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ Lord Jesus. Hallelujah. ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇ ਲਹੂ ਚ ਛਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ Lord Jesus. Hallelujah. Yes, yes, Lord. ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਝੇ ਭੇਦਾਂ ਵਾਲੇ ਦੱਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕ ਬਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾਓ Lord Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Oh Lord. yes, Lord Jesus. ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ Lord Jesus. Hallelujah. Yes, Hallelujah. Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you. Yes, Thank Lord. you, Yes, Jesus. Lord. Yes. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, Lord. Thank you, Yes, Jesus. Lord. Thank Yes, you, Lord. Jesus. Yes, Thank you, Lord. Lord. Yes. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Yes. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ Lord Jesus. ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਬਚਨ ਵਾਸਤੇ Yes. ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਖੁਦਾਵੰਦ Lord Jesus ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ Lord. Hallelujah. 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 Yes, Lord. Yes, Lord Jesus. ਖੁਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਓ Lord Jesus. ਖੁਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ Yes, ਸਾਡੇ Lord. ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਔਰ ਆਖਰੀ ਬਰਸਾਤ ਕਰੋ Lord Jesus. ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਈਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਿਤਾ Yes, ਪਰਮੇਸ਼ਰ Lord. Yes, Hallelujah. Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਤਾਰੀਫ Lord Jesus. ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚ ਹੋਰ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ Lord Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਵਾਲੇ ਫਲ ਹੋਣ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੋ ਸਾਡੇ ਚ ਚਾਹੁੰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚ ਗਰੋ ਕਰੀਏ Lord Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿਓ Lord Jesus. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿਓ Lord Jesus. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. ਖੁਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ Yes, ਸਾਨੂੰ Lord. ਪਾਕ Yes, ਬਣਾ ਦੇ Lord. Yes. ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾ ਦੇ ਖੁਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਕੱਢੀਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਮਤ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਦੇਈਏ Lord Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Yes, Lord Lord. Yes, Jesus. Lord. ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੈਨੂੰ ਮਹਿਮਤ ਤੇ ਜਲਾਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ Lord Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. ਗੁੱਸਾ ਹੰਕਾਰ ਨਫ਼ਰਤ ਕੱਢ ਦੇ in the name of Jesus. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. ਖੁਦਾ ਪਿਤਾ Yes, Lord. ਪਰਮੇਸ਼ਰ Yes, ਖੁਦਾਵੰਦ ਬੁਰਾਈਆਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ Lord Jesus. Hallelujah. ਖੁਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਵਧਾਓ Lord Jesus. ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਫਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਖੁਦਾਵੰਦ Yes, Hallelujah. Lord. ਖੁਦਾਵੰਦ Yes, Lord. ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾਓ Lord Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. ਖੁਦਾਵੰਦ ਓ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ Lord Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. ਖੁਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ Lord Jesus. ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਤਾਰੀਫ 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 Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ Lord Jesus. ਆਦੇ Yes. ਬਚਨ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ Lord Jesus. ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ Yes, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ Lord. Yes, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ Lord Jesus. ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ Lord Jesus. ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪੱਕਿਆ ਕਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹਾਲੇਲੂਇਆ Yes, ਯੈਸ Lord. Lord Jesus. ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੋਈ ਵੀ ਤੰਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਾ Lord Jesus. ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ Yes. ਤੇਰੇ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਈਏ in the name of Jesus. ਹਾਲੇਲੂਇਆ Yes, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, Lord Jesus. ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜੰਗਜੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ Lord Jesus. Yes, Hallelujah. Lord. Yes, ਖੁਦਾਵੰਦ Lord. ਸਾਨੂੰ ਪਾਕ ਦਾਮਨ ਕੁਆਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ Lord Jesus. Hallelujah. Oh yes, Lord Jesus. ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੋ ਤੂੰ ਆਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨਾਂ 'ਚ ਉਠਾਏ ਜਾਈਏ Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Yes, Lord. Lord. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. ਖੁਦਾ ਪਿਤਾ Yes, ਪਰਮੇਸ਼ਰ Lord. Yes, Lord. ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ Lord Jesus. ਖੁਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇ ਲਹੂ 'ਚ ਛਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ
ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ Yes, ਖੁਦਾਵੰਦ Lord. ਹਰ ਇੱਕ Yes, ਦੀਆਂ Lord. ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਲਾਰਡ Yes, ਜੀਸਸ Lord. Yes, ਹਾਲੇਲੂਇਆ Lord. ਖੁਦਾਵੰਦ ਹਰ Jesus, ਇੱਕ hallelujah. ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਵਿਦਸ਼ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਚ ਮੈਂ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਇਨ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਚ ਝਿੜਕਦੇ ਆ ਇਨ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਓ ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ Yes, ਕੁਛ Lord. ਨਹੀਂ ਕਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਮਹਾਨ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਯੈਸ ਲਾਰਡ Yes, ਯੈਸ Lord. ਲਾਰਡ Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, Yes, praise the Lord, Lord. praise Yes, the Lord, Lord. praise the Yes, Lord. Lord. Hallelujah. Yes, Thank yes, you, Lord Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. God, Khuravan. Say ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ Lord Jesus. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Khuravan. ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ Khuravan ਤੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ Khuravan ਤੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ Lord Jesus. Hallelujah. ਹਰ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ Khuravan ਤੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ Lord Jesus. ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ Khuravan ਤੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੌਰ ਤੇ Khuravan ਸਪਿਰਚੁਅਲੀ ਤੌਰ ਤੇ Khuravan ਹੋਰ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਤਕੜਿਆ ਕਰ Yes, Lord Lord. Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Khuravan ਡਰ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਚ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗੇ in the name of यीशु के Jesus. नाम से. Yes, Lord. Oh yes, Yes, Lord. Lord Jesus ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਦਿੰਦਾ oh yes Lord Jesus ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ Yes. ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿਓ Lord Jesus ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਹਲੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਓ Lord Jesus ਹਾਲੇਲੂਇਆ yes Lord Jesus ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਓ Lord Jesus ਹਾਲੇਲੂਇਆ Yes, oh Lord. yes Yes, Lord Lord. Jesus ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਕੜਿਆਂ ਕਰ ਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ ਚ ਵੱਧਦੇ ਜਾਈਏ Lord Jesus ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਚ ਵੱਧਦੇ ਜਾਈਏ Lord Jesus ਹਾਲੇਲੂਇਆ yes Lord yes Lord yes Lord thank you Jesus thank you Jesus thank you Jesus Lord ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਜਲਾਲ ਮਿਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਹੀ ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਜਲਾਲ ਤੇਰਾ ਹੈ Lord Jesus Yes, ਹਾਲੇਲੂਇਆ Lord. yes Yes. Lord Jesus ਖੁਦਾਵੰਦ yes Lord ਖੁਦਾਵੰਦ ਵਿਦਾ ਤੇ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ Lord ਹਾਲੇਲੂਇਆ praise Lord praise Lord praise Lord praise Lord Yes, Lord. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. खुदावन ओ मेरे बाप से की खुदा पिता परमेश्वर जिसने भी खुदावन प्रेयर की खुदावन जिन्होंने भी गीत गाए खुदावन तुना होर भी आशीष और बरकत दे अल्लाह चीज़ खुदावन जिन्होंने खुदावन दे बचनों ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਵੀ खुदावन पिता तू ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਆशीष और बरकत दे अल्लाह चीज़ Yes, खुदावन Lord. Yes, खुदावन जब Lord. नहीं आए खुदा पिता जिथे भी खुदावन तू ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ और ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ अल्लाह चीज़ हालेलुया खुदावन तू ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ अल्लाह चीज़ Yes, खुदावन ਤਾਂ Lord. ਉਹ ਵੀ Yes. ਤੇਰੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਣ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਣ ਖੁਦਾਵੰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੱਧਦਾ ਹੋ ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਖੁਦਾਵੰ Yes, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ Lord. ਵੀ ਲੈ Yes, ਕੇ ਆ Lord. ਖੁਦਾਵੰ Yes. ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਲਾਰਡ Yes, ਹਾਲੇਲੂਇਆ Lord. ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦ Yes, ਲਾਰਡ Lord. praise the Lord praise the Lord praise the Lord Yes, ਹਾਲੇਲੂਇਆ Lord. ਲਾਰਡ Yes, ਜੀਸਸ Lord. ਖੁਦਾਵੰ Yes. ਸਿਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਰ ਸ਼ਹੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਲਹੂ ਚ ਛਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾਵੰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇ ਖੁਦਾਵੰ Amen. ਖੁਦਾਵੰ ਦੇ ਗੁੱਜੇ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦਾਵੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ Yes, ਖੁਦਾਵੰ Lord. Yes, ਓ Lord. ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਖੁਦਾਵੰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਖੁਦਾਵੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਕਰ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਯੈਸ Yes, ਲਾਰਡ Lord. Yes, ਹਾਲੇਲੂਇਆ Lord. Yes, Praise the Lord. Lord Jesus ਖੁਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੁਦਾਵੰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ ਖੁਦਾਵੰ Yes, ਹਰ ਇੱਕ Lord. ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰ ਜੋ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਖੁਦਾਵੰ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਇਨ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ यीशु के नाम से. Yes, Lord. Yes, Lord. ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪੁੱਟੇ ਹੋਏ ਟੋਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਸਿਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇਨ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ यीशु के नाम से. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes. ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਸਿੱਟੇ ਹੋਏ ਤੀਰ ਖੁਦਾਵੰ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ 'ਚ ਵਾਪਸ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੀ ਸੀਨੇ 'ਚ ਠੋਕ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇਨ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ यीशु के नाम से. Yes, Lord. Yes, Lord. yes Lord हालेलुया Yes, लॉर्ड Lord. जीसस Yes, खुदा Lord. पिता Yes, yes, Lord. हर कोई बच्चे खुदावन जो भी खुदावन स्कूल जांदे कॉलेज च जांदे खुदावन जो जॉब ते जांदे खुदावन तो ओंदे जांदे खुदावन उन्हां दा मैं तेरे खुदावन दूतां नाल उन्हां ते पैरा लगा दिंदी हां लॉर्ड Yes, हालेलुया Lord. Yes, Lord Jesus. हालेलुया कोई भी शैतान दी बुरी आंख ना देख तक भी ना सके खुदावन हालेलुया यस लॉर्ड Yes, जीसस Lord. खुदावन Yes, तू Lord. उन्हां नु समझ देनी बुद्धि देनी है लॉर्ड जीसस हालेलुया यस लॉर्ड जीसस खुदावन तू जिंदा खुदावन तू उन्हां दी हर वक्त रखया कर लॉर्ड जीसस हालेलुया खुदावन सानू भी खुदावन समझ और बुद्धि देने वाला जीसस खुदावन ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕੀਏ ਖੁਦਾਵੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਸਿਖਾ ਸਕੀਏ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਖੁਦਾਵੰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ ਲਾਰਡ Yes, ਜੀਸਸ yes, ਤੂੰ ਤੇ Lord. ਆਕਾਰ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਖੁਦਾਵੰ
ਖੁਦਾਵੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਲਾਰਡ Yes, ਜੀਸਸ Lord. ਖੁਦਾਵੰ Yes, Lord. ਤੇ ਜਿਸ Yes. ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਖੁਦਾਵੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਾਤ ਸਕੀਏ ਲਾਰਡ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਯੈਸ Yes. ਲਾਰਡ Yes. ਖੁਦਾਵੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ 'ਚ ਖੁਦਾਵੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਨਾ ਦਈਏ ਪਰ ਖੁਦਾਵੰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੈਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦਈਏ ਖੁਦਾਵੰ Yes, Lord Jesus. ਕਿ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਹੀ ਹਰ ਵਕਤ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਤੂੰ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰ ਤੂੰ Yes, ਜ਼ਿੰਦਾ Lord. ਖੁਦਾ Yes. ਖੁਦਾਵੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਜਲਾਲ ਖੁਦਾਵੰ ਤੈਨੂੰ ਦਈਏ ਖੁਦਾਵੰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ Oh, Jesus. Yes, Lord. ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਖੁਦਾਵੰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰ ਆਪਣੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰ ਹੋਰ ਹੀ ਭੜਕਾ ਦਿਓ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ Yes, Lord. Yes, ਖੁਦਾਵੰ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘੀਆਂ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਖੁਦਾਵੰ ਅਸੀਂ ਖਰੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਾਂਗ ਖੁਦਾਵੰ ਹੋ ਜਾਈਏ ਲਾਰਡ Oh, ਜੀਸਸ yes, Lord. Yes, Lord ਸਾਡੇ Jesus. ਰੱਤੇ Hallelujah. ਜਾਂਦੇ ਰੱਤੇ ਖੁਦਾਵੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਹੋਣ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ Yes, Lord. ਯੈਸ Yes. ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਖੁਦਾਵੰ ਵੀ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤਕੜਿਆ ਕਰਿਓ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ Lord. ਕਰਿਓ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਖੁਦਾਵੰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਲਾਰਡ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਲਾਰਡ Hallelujah. ਖੁਦਾਵੰ ਦੀ Hallelujah. ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ ਖੁਦਾਵੰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ Yes, ਹਾਲੇਲੂਇਆ Lord. Yes, Lord Jesus. ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਖੁਦਾਵੰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾਵੰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾਵੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜੇ ਗੀਤ ਗਏ ਖੁਦਾਵੰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ Yes, ਖੁਦਾਵੰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ ਜੋ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰ ਵਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਦਾਵੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਯੈਸ Yes, ਖੁਦਾਵੰ yes, ਅਸੀਂ Lord. ਜੋ ਵੀ ਖੁਦਾ ਮੰਗਿਆ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਪਾ ਲਿਆ ਖੁਦਾਵੰ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ ਖੁਦਾਵੰ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ Amen. Amen. ਲਾਰਡ Amen. अब हमारे खुदा का फजल, उसकी तसल्ली, उसका इत्मीनान हम सबों के साथ हमेशा तक होता रहे जब तक कि खुदा यीशु मसीह आ नहीं जाता। आमीन। गॉड ब्लेस यू। Amen. God bless you too. आमीन। थैंक यू। आमीन। सिस्टर समरीन, आप टेस्टमनी देना चाहती हैं? दीदी जी, प्रेज द लॉर्ड सबको। Praise the Lord. मैं ये गवाही देना चाहती हूँ कि आज ना मैं दुआ कर रही थी। पहले मैं बैठी थी तो अचानक ना सिस्टर सुरैया का आप सबको पता है, उनका ना मुझे फोन आया, उन्होंने मुझे बताया कि दीदी ऐसे ऐसे ना मुझे मेरी सुपरवाइजर ने ना इमरजेंसी में शिफ्ट कर दी है। तो मुझे जब उन्होंने बताया तो मैं समझ गई, मैंने कहा रानी मास्टर इमरजेंसी में तो काम बहुत होता है, ये तो और मैं फौरन इनके लिए फिक्रमंद हो गई ना कि उधर तो बैठने का भी वक्त नहीं होता, तो ये कैसे इतनी वो टफ जॉब जो है ना वहां पे करेंगी। तो मैं कहती कि मेरे खिलाफ ना बस ऐसी जो मेरी जो डिपार्टमेंट की जो उसने मुझे इस तरीके से जो है ना यहाँ पर भेजा है, सारा उन्होंने मुझे बताया। तो मेरी जुबान से उनके लिए ना बस एक ही अल्फाज निकले, मैंने कहा रानी मासो आप दुआ करो, आप ना बोलो कि खुदा को इनकी उसे याद करवाओ कि खुदावंद तू तो मेरे दुश्मनों के आगे भी मेरे लिए दस्तरखान बिछाता है। ये क्या है कि ना मैंने ना हमारी बात खत्म होगी, थोड़ी देर हमने बात की तो फोन बंद हो गया। उसके बाद खुदा ने मुझे एक अजीब सा बोझ दिया पाक रोने के। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं ऐसी मेरी कंडीशन क्यों हो रही है कि मेरा दिल करे कि मैं ना रोने लग जाऊं, मैं दुआ करूं। और मैं दुआ कर रही और ना खुदावंद ने मुझे कहा कि तू ना घुटनों पर होकर दुआ करना शुरू कर दे। मेरे पास मेरे दोनों बड़े बच्चे सो रहे थे, तो बल्कि तीनों ही बच्चे जो है ना सो रहे थे, तो मैंने ना उनके पास ही बेड पर जो है ना मैं घुटनों के बल होगी कि अचानक बच्चों को भी देखना पड़ जाता है। तो मैंने दुआ करना शुरू किया, मैंने खुदा से वाजिया कलाम मांगना शुरू किया रानी मासो के लिए। मैंने कहा खुदावन तू मुझे बता कि तू क्या चाहता है और तू उन्हें बहाल कर, क्योंकि मुझे पता है इमरजेंसी में तो बहुत काम होता है खुदावंद, और उनके बदन में उनके जिस्म में इतनी ताकत नहीं है कि वो इतना एफर्ट करें और इतनी हार्ड जो है ये सर्विस दें। तो फिर खुदावंद ने मुझे उनके लिए दुआ बतानी शुरू कर दी कि तू ये अल्फाज जो है ना पाखरू ने मुझे बताना शुरू कर दिया। मैंने फिर उसने मुझे कहा कि तू जो है उसके लिए ना 91 ज़बूर की आयत है, मुझे आयत नहीं याद, कि
اس کے ایک طرف 1000 دوسری طرف 10,000 گر جائیں گے اور کوئی تیرے نزدیک نہ آئے گا. خدا نے مجھے کہا کہ تو یہ اس کے لیے کلیم کر اور دیکھنا کہ میں اس کو واپس اس ڈپارٹمنٹ میں نہیں بلکہ اسی ہاسپٹل کے ایک اچھے ڈپارٹمنٹ میں ٹرانسفر کروں گا. اور یہ جب تک وہاں پہ سروس کرے گی وہ ڈپارٹمنٹ، وہ لوگ، وہ سپروائزر، سینئر سے لے کے جونیئر، اور جو اس کے ایکولزم جو سٹاف ہوگا وہ بھی اس کی فیور میں ہوگا. پریز دا لارڈ. خدا نے Praise مجھ the سے Lord. یہ واضح کلام ان کے لیے کیا کہ جب تک اس کی سروس ہوگی اس کو وہاں پہ تکلیف نہیں ہوگی، میں اسے کروں گا، ایسا ٹرانسفر کروں گا، یہاں پہ نہیں رہنے دوں گا. تو اور پھر خداوند نے مجھے بوجھ دیا کہ میں اپنی فیملی کے لیے دعا کرنی شروع کر دی. میں نے اپنے بچوں کے لیے، میری بڑی بیٹی جو ہے بہت زیادہ ان دنوں میں نا مجھے تنگ کر رہی ہے، یعنی کہ اسے اپنے چھوٹے بھائی کے اوپر جونا پہ بہت غصہ آتا ہے، لڑائی کرنے لگ گئے ہیں. یہ کبھی کرتے نہیں تھے لیکن اب ہونی شروع ہوگی ان کی لڑائی. تو میں بڑی فکر مند تھی اس کے لیے، میں نے اس کے لیے بھی دعا کرنی شروع کی. بہت زیادہ میں پریئر کری تھی اپنی فیملی کے لیے، کیونکہ مجھے پتا جیسے اگر ماں باپ اور صرف بچے رہ رہے ہیں تو پھر ایک الگ چیز، الگ بات ہوتی ہے، لیکن جب ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو بہت ساری اسپرٹس بھی جو ہے وہ اٹیک کرتی ہیں آپ کی پرورش کرنے میں، بہت ساری چیزیں رکاوٹ بھی بن رہی ہوتی ہیں. تو میں فکر مند رہتی ہوں بچوں کے لیے ہمیشہ. اور میں نے پھر جب دعا کرنی شروع کی تو میں نے مجھے خداوند نے واضح طور پہ دکھایا کہ اس نے جو ہے پاک روح کی آگ کی جو باڑ ہے نا وہ میرے گھر کے، میرے بچوں کے، میرے شوہر کے چوگرد لگا دی ہے. میں نے اس آگ کو جلتے ہوئے دیکھا اور اس کے بعد جو ہے مجھے ایک بہت بڑا سا جو ایک ریچ کی مانند جو ریچ ہوتا ہے، پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں، اور ٹھیک ہے. وہ میں نے ریچی دیکھا. بیئر. ہاں بیئر، ہاں جی. اور اس کے ان کے مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا چیز ہے، لیکن جب اس کے پیروں کو میں نے دیکھا تو تب مجھے پہچان ہوئی کہ یہ تو بیئر ہے نا، یہ رچ ہے، بہت بڑا، جیسے بہت ہی بڑا کوئی حیوان جیسے کہہ لیں کہ اس طرح کا تھا وہ. تو وہ مجھے نا خداوند نے نا میرے پاس الفاظ نہیں مل رہے تھے. آج میں اتنی کو میرے اندر بوجھ تھا کہ میں کہہ رہی تھی خداوند مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ میں کیا دعا کروں، میں کیا بولوں. تو خدا نے مجھے کہنا شروع کیا کہ بس تو ہالےلویا گاتی جا، اور صرف ایک ہی لفظ یہ ہالےلویا ہی میں بولتی جا رہی تھی. اور باقی جو دعا تھی وہ میرے دل کے اندر تھی، جیسے دل بول رہا ہے اور زبان صرف ہالےلویا گا رہی ہے، دل دعا کر رہا ہے. کہ میرا جو تھا میں خدا سے کہہ رہی تھی کہ آج میں حنا کی مانند جیسے اسے کاہن نے کہا تھا کہ وہ کاہن اس کو روتے ہوئے دیکھ کے سمجھا کہ شاید یہ یعنی کہ نشے میں ہے نا. تو میں کہتی خداوند آج میری روح کا ایسا حال ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں، میں بہت جو ہے وہ بس تیرے آگے زیرو ہو چکی ہوئی ہوں. تو مجھے خداوند نے کہا کہ تو یہ ہالےلویا یہی بس بولتی جا. تو میں اسی کو گاتی جا رہی تھی اور تب میں نے یہ حیوان سا دیکھا. تو پھر خدا نے مجھے اور زیادہ زور سے کہا کہ اور زیادہ زور سے ہالےلویا تو گا نا. میں نے اور زیادہ زور سے، اور میں نے بچوں کے سوتے ہوئے نیند کی پرواہ نہیں کی کہ یہ اٹھ نہ جائیں، اور خداوند کا شکر ہے کہ یہ اٹھے بھی نہیں. میں بڑی قوت اور بڑے زور کے ساتھ جو ہے ہالےلویا بول رہی تھی. تو میں نے اس رچ کے اوپر نا وہ آگ، اس کو آگ سے جلتے ہوئے دیکھا، پھر کہ وہ آگ سے جلنے لگ گیا ہے. کہ میری زبان سے ہالےلویا لکھا لیکن میرے دل میں یہ آ رہا تھا کہ خداوند وہ آگ نازل کر جو آسمان سے نازل ہوتی ہے. جب جیسے تجھے ایلیا نے پکارا تھا تو نے آسمان سے نازل کی تھا، تو نے بتایا تھا کہ تو ہی خدا ہے، تو ویسے ہی آج تو اس کو بھی ختم کرنا ہے، اسے بھی بھسم کر. تو خداوند نے اسے کیا. اور میں زیادہ اپنے لیے بھی کر رہی تھی، میں اپنے بچوں کے لیے تو دعا کرتی تھی، میں اپنے لیے بھی دعا کرتی تھی خداوند کہ میری کمزوریاں بھی ختم کر جو مجھے تجھ سے دور کرتی ہیں. تو یہ میں نے دیکھا. اس کے بعد خداوند نے مجھے کہنا شروع کیا کہ تو یہ الفاظ بول کہ بریک ایوری چین. تو یعنی کہ یہ بولنا شروع کر دے. میں نے انگلش میں یہ بولنا شروع کر دیا بریک ایوری چین. تو میں نے پھر تب جو ہے جب میں یہ بول رہی تھی تو میں نے دروازوں کو کھولتے اور زنجیروں اور بیڑیوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے. پریز دی لارڈ. مجھے کیونکہ میں خداوند سے واضح طور پہ مانگ رہی تھی کہ خداوند واضح کلام کر، میں دیکھنا چاہتی ہوں، مجھے بتا کہ تو کیا چاہتا ہے. اور آج جو تو نے مجھے ایسے بٹھا دیا ہے کہ تو دعا کر، تو گھٹنوں کے بل ہو جا. تو
मुझसे बात भी करी है, तूने ऐसा इनकी तू क्यों चाह रहा है कि मैं दुआ करूं? तो Praise खुदावन God. का शुक्र है कि खुदा ने जो है वो इस तरह से मुझे दिखाया, और खुदा चाह रहा था कि आज जो है खुदावन उन कमियों को जो है यानी कि सिर्फ ये मेरे बच्चों के लिए, मेरी फैमिली के लिए नहीं था, बल्कि खुदावन ने मुझे भी बहाल किया। खुदा मुझे भी आजाद कर रहा उसने मुझे भी आजाद किया, ये मेरे लिए भी था। और खुदावन ने रानी मासो के लिए भी डायरेक्ट कलाम किया। मैं खुदावन की शुक्रगुजार हूँ। आप सब लोगों को बताने का मकसद जो है वो सिर्फ ये गवाही शेयर करने का कि अ, हम जब खुदावन के आगे सिलेंडर हो जाते हैं ना और खुद वाजिया कलाम मांगते हैं, तो खुदा हम सबसे भी करता है, वो हम सबसे बात करता है, वो हम सबके पास जो है वो हम सबसे बात कर सकता है, वो हम सबके साथ वाजिया कलाम कर सकता है। हम में से कोई एक या दो शख्स मखसूस नहीं है, खुदावन के साथ हम सबका एनकाउंटर हो सकता है। अगर हम खुदावन से मांगे, उसको पुकारें, तो वो हम सबको जवाब देने के लिए तैयार रहता है, वो हमारा इंतजार करता है। तो इस गवाही से मेरा ईमान है कि आप सब लोगों को तकवीत भी मिली होगी और नया जोर भी मिला होगा। आमीन। प्रेज गॉड। हाँ जी, गॉड ब्लेस दीदी, खुदावंद आपको बरकत दे और इसी तरह वाजिया कलाम करता रहे, आप दूसरों के लिए बाइस बरकत बनती रहे और दूसरों के लिए इसी तरह खुदावंद आपको शफायत के लिए इस्तेमाल करता रहे। और खुदावंद आपकी फैमिली को भी और जिन जिन के लिए भी आप दुआ में ठहरती हैं, खुदावंद आपको मसा दे और नया जोर दे, नई ताकत दे। गॉड ब्लेस यू। मैंने भी ये प्रेयर में जब सोनिया प्रेयर कर रही थी तो मैंने देखा है कि खुदावंद का जो आज खास एक जो जलाल है, मैंने देखा है कि खुदावंद हमारे ऊपर उंडेल रहा है। तकरीबन जैसे कहते रोज मैं देखती थी कि एक सर्कल की सूरत में हमारे ऊपर मसा जो है, कोई भी जो खुदावंद हमें देता है वो उंडेल रहा है। लेकिन आज मैंने देखा है कि जैसे चौरस जो होता है उस सूरत में हमारे ऊपर खुदावंद जो मसा है वो उंडेल रहा है, और वो वाइट एक रोशनी की सूरत में हमारे ऊपर उंडेला जा रहा है। और वो रोशनी जो है ये जिस तरह खुदावंद का जलाल होता है, तो मेरा ईमान है कि खुदावंद जो है हम सबको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है और आगे भी करेगा। जिस तरह के दीदी ने भी टेस्टिमनी दी कि खुदावंद जो है जो भी इसके साथ कलाम हुआ है, तो जब इसको खुदावंद कलाम को पूरा करेगा तो इसका मतलब कि खुदावंद अपने जलाल को जैसे कहले हमारी जिंदगियों में दिखा रहा है, जाहिर कर रहा है। तो इसलिए मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ आज की सारे कलाम के लिए, टेस्टिमनी के लिए, और सारी आज की बरकत के लिए खुदावंद का हम शुक्र करते हैं कि वो हमारे दरमियान मौजूद था। जी, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबके साथ हो जी। गुड नाइट। अगर किसी और ने कुछ अगर कुछ कहना है तो कह सकता है। जी, है कोई के? ठीक है, चलिए ठीक है जी।